which actually took you a lot of time to fight. Lot of time to To actually fight, और जितना भी मतलब नॉर्मली कहते हैं कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, आप एक बार चले गए तो बहुत ज़्यादा वक्त लग actually like touch wood with me, that is my forte, and that I always secure speedy disposal and speedy result, because I don't believe in wasting time. But हाँ, एक मतलब ऐसा केस एक था जिसमें the girl was inside since a very long time already. She had a hard time before I was appointed for. She was just 18 years old when she was arrested, और वो कुछ 5 साल से अंदर थी, and she had almost given up because बहुत सारे senior counsels के थ्रू उनका केस रिजेक्ट हो चुका था. Then when I was onboarded, it was a very high profile case, like it's Haryana encounter murder matter, जिसमें the girl was a model, और उनके ऊपर ये allegation था उन्होंने अपने gangster boyfriend को मरवा दिया है. Then when I was onboarded, I just within 3-4 months I got her out, because I argued before the court कि अगर एक तो if you see it in broader perspective, अगर आप किसी एक gangster की tip देते हो, so you get rewarded, right? If you say to the police officer about his whereabouts. Here in the entire charge sheet, there's nothing so far as her knowledge is concerned that she had knowledge about the murder or any encounter will take place. At the most आप ये बोल सकते हो. Transcript जैसी चीज़ों पे rely किया जा रहा था, which cannot be relied upon at the bail stage. At the stage of trial आप उसकी veracity देखो, ये सब तो वो सारी चीज़ें मैंने रख के उसे बाहर निकाला. But just immediately within few months of her release, she was killed. So of course that also had a toll on me for a while. I still remember I did not step out of the house for about 2-3 days, and of course it was very challenging. Those days were really challenging for me, but then I came to terms with the fact that okay, wherever she must be happy now, and I've become very thick skinned now because of these experiences. They've only strengthened me and made me more stronger. जैसे हम मैरिज की बात कर रहे हैं, जब डिवोर्स की बात आती है, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आजकल क्रूशियल है, दैट इज एलिमनी. एलिमनी का कोई सेट फॉर्मूला होता है या एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग? ऐसा तो नहीं है कि आप यू कैन नॉट आस्क फॉर द मून. आप जाके कोर्ट में ये तो नहीं बोल सकते हो कि मुझे चांद तारे लाओ या मुझे 10,000 करोड़ लाओ, इफ इट्स नॉट बीइंग जस्टिफाइड. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑफ कोर्स द इनकम capacity of the husband, the lifestyle that the wife has had during the marriage, while the marriage sustained. If the wife has a child, तो वो बच्चे की जो एक्सपेंसेस है उसके एजुकेशन से रिलेटेड हो या उसके खुद की लाइफस्टाइल हो, एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शी एंजॉयड इवन व्हाइल शी वाज लिविंग टुगेदर, वो सारी चीज़ों को ऑफ कोर्स देखा जाता है. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द हस्बैंड, सफिशिएंट income capacity, sufficient means of subsistence. Now there is a rule that you have to provide assets and liabilities in affidavit form, where you have to give everything in the court in an affidavit form, like you're giving it on oath. You cannot suppress your income or your asset details, anything from the court, as per Rajneesh judgment of the Supreme Court. So you have to specify कि आपके पास क्या है क्या नहीं. अगर आपने कुछ भी suppress किया है, छुपाया, तो ultimately that also amounts to, that will also invite appropriate proceedings under section 340. So आप कुछ छुपा नहीं सकते. उसके बेसिस पे ये सब कुछ देखकर देन कोर्ट अल्टीमेटली इवन अराइज एट अ कंक्लूजन कि कितना जस्टिफाइड है. वी हैव टू ऑफ कोर्स प्रेजेंट द फैक्ट्स आल्सो. आई एज अ लॉयर विल पॉइंट आउट दैट हाउ this is not domestic violence from the husband, how the cruelty is not made out, how these are all false allegations, how the marriage may have been probably this marital relationship was entered into only with the view and with the objective of extorting money. So this is not marriage, and sometimes it becomes an extortionist intention wala marriage. This is not a marriage in its true sense. तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में आपको दिखानी होती है. फिर अल्टीमेटली उस बेसिस पे जो कोर्ट को लगता है एंड में इन फाइनलिटी की कितना फेयर है या फेयर अमाउंट है, वो कोर्ट अवॉर्ड करती है. इवन गर्लफ्रेंड्स, अभी ब्रेकअप भी होता है और अगर वो बहुत लंबे टाइम के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए साथ में रहे, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करके मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, रेसिडेंस राइट्स भी क्लेम कर सकते हैं. अब डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज़ है बिकॉज नाउ एवरी हाउसहोल्ड डजंट हैव अ कैमरा, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आई डोंट थिंक प्रूव की जा सकती है. और आई थिंक हमारे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लॉज गलत हैं, बट इस चीज का फायदा उठाया जाता है. एब्सोल्युटली, बिकॉज वो बहुत जेंडर स्पेसिफिक लॉ है. मैं तो खुद कहती हूँ ये बिल्कुल भी जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं लगता मुझे. इसमें अग्रीव पर्सन सिर्फ और सिर्फ वुमन हो सकती है. अग्रीव पर्सन आदमी तो हो ही नहीं सकता. मतलब आदमी को टोटली डिबार कर दिया जाता है इस एक्ट के बेनिफिट से. इट्स अ वेलफेयर लेजिस्लेशन, आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू सी केसेस ऑफ सोनम रघुवंशी, इफ यू सी केस ऑफ अतुल सुभाष, और आजकल के आप एग्जाम्पल देखो, तो आपको लगता है कि आजकल क्या आदमी पे जुल्म नहीं होता. हम वो रिग्रेसिव स्टैट्यूट से हमें बाहर निकलना चाहिए, और हमें आज के ज़माने के हिसाब से बैलेंस करके लॉ को, स्टैट्यूट को अमेंडमेंट करना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नेसेसिटी नाउ, बिकॉज अब तो अगर आप देखो तो जैसे आपने कहा सीसीटीवी तो होते नहीं है घर में, सो इट्स लाइक इट्स हर वर्ड अगेंस्ट हिज. वो उसने बोल दिया तो मान लिया जाएगा. ऐसे इतना कोर्ट या लॉयर्स
कैसे इस चीज को लेके फाइट करते हैं या then डिसाइड ultimately करते then they're put to their version is put to test by placing these women in the witness box where then they are questioned, they get questioned, हैं? they get cross examined. तो वहाँ पे फिर उनसे कैसे हम ultimately उनके veracity कैसे we can destroy वहाँ पर जो है contradictions वो सब हम record पे लाते हैं by whatever she says it is being corroborated by any evidence या ये वो. मगर ultimately the agenda, see I know that in there have been time and there have been instances where women were brutally tortured and actually औरतों को अगर बच्ची होती थी अगर तो बच्ची को मार के जला दिया जाता था. अगर इफ द वुमन वुड नॉट गिव इन एंड वुमन वुड से कि नहीं मुझे बच्ची पैदा करना तो वुमन को मार के जला दिया जाता था. सो द ऑफ कोर्स द क्राइम रेट was rising exponentially considering that all these legislations were enacted. That I'm not denying that obviously there are genuine cases, 70% genuine भी होते हैं पर 30% तो इतने false Of course. prima facie on the face of it इतने false होते हैं that you feel sorry. It's a sorry state of affairs. Or how does even such case get registered and not get quashed in the very beginning? Why do you let this case prolong also for such a long time, ultimately subjecting the husband and the entire family to trauma? Because अगर आप देखो तो domestic violence हुआ 492 वहाँ पे वाइफ सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं पूरे के पूरे family, खानदान को उठा के कोर्ट में बिल्कुल, लेके आती है और बिल्कुल। सबके ऊपर केस कर देती है. तो आपको लगता है ये एलिमनी लॉज है इंडिया में ये बहुत ज्यादा बाइस्ड है टुवर्ड्स वुमेन? बायस तो मैं नहीं कहूँगी मगर या टू एन एक्सटेंट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये है कि सी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट आप सेक्शन 24 और 25 के हिसाब से आदमी भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर औरत उतना ज़्यादा कमाती है. एंड इफ द हस्बैंड प्रूव्स इन द कोर्ट दैट ही हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड himself in the relationship, in the marriage, and he has sacrificed to an extent जहाँ वो सब कुछ प्रूव कर सके और औरत की उतनी है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस लाइवलीहुड और इतनी अर्निंग कैपेसिटी सो इवन मेन कैन क्लेम. बट ऑफकोर्स अगर आप जनरल नोशन देखो और आप हाई रेट्स देखो तो ऑफकोर्स वुमेन यूजुअली डिमांड तो वो एलिमनी कहीं ना कहीं वो जिस हिसाब से डिमांड करती है विदाउट इवन सीकिंग विदाउट इवन प्रोड्यूसिंग एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द डिमांड. अगर वो मांगेगी 10 करोड़ जानते हुए कि हस्बैंड की मंथली इनकम हो 2 लाख या 4 लाख वो उसको कहाँ से 10 करोड़ देगा. पर वो भी कुछ भी बस रिवेंज में और गुस्से में आके और अपने जस्ट टू सेटल देयर पर्सनल स्कोर्स दे डू इट. कोर्ट में वो कुछ भी मांगेगी फॉरगेटिंग एंड देन दे समहाउ सम वुमेन यूज इट एज अ टूल एज अ वेपन टू फॉर देयर सर्वाइवल. If you're educated, if you are an educated woman, if you're capable enough, physically also capable enough to earn your own livelihood, your own means of subsistence, why would you need a man to be financially dependent upon that your whole life? You want to secure your whole life basis his maintenance. Maintain yourself, remarry, or genuinely do something for yourself. Because now we are living in an era where women and men are given equal opportunities in every arena, be it whatever field. तो यहाँ पे अब अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो ट्रूएस्ट सेंस में निभाओ. फिर आप मत मांगो ना उस तरह से एलिमनी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बस एक आदमी था वो बकरा था वो पति नहीं था आपके लिए. आपको वो शादी नहीं वो एक एक्सटॉर्शन था. आप कहीं ना कहीं यू आर इरोडिंग द फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता जा रहा है. इस वजह से नाउ डेज इफ यू सी पीपल गेटिंग मैरिड नाउ बहुत कम हो रहा है. वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो सकता है. पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जो एक केस लड़ रहे हैं या बहुत सारे हैं जो यहाँ मतलब इस जगह फंस चुके हैं. So they cannot do anything about it. Is there a way out? Elimini से बचने के लिए? See, it's always. In fact, when I'm